Hi guys, this is my second video, and as I told you that we'll be starting from section 28 here, which I was like in the last video. There I finished only, so I'm just like continuing from there. Section 28 of IPC. I hope you all remember what we are studying. It's the IPC, and it's a Bayer Act reading. Okay, so Bayer Act, like first how I have planned. I'll just explain it here a bit. That key how I have planned. What is it? So how I have planned actually that I just wish that we should have this so we should have this thing like IPC, Bayer Act. Okay, so what I have noticed in most of the videos there, as a student I face this problem that I did not know how to read Bayer Act. Okay, the first thing is like how to read Bayer Act, that I did not know first. So I thought like if I don't know, maybe there would be problem with every student also who are reading and going through Bayer Acts. Section on all everything is there on internet, but then to do a thorough reading of Bayer Act is a problem. Okay, so I'm going to continue this thing like from one section to section where all this punishment and all is starting. So this is in section basically of 53. Say we'll be going by section, that's how we'll be going. But from 1 to 53 there are basic definitions that I'm going to record here, and I want to read that by through only Bayer Act so that we don't face any problem. Okay, that's what. Now let's go to this thing. So here only I finished this thing with the Bayer Act, so I'm going to conclude it, and let me know if you're facing any problems. So I'm just recording this on my tab. Actually this is an iPad, and I hope it is visible on your screen. Whatever you are using, it would be your phone or your laptop or whatever. If there's some problem, just let me know in comment section please. Okay, so now the counterfeit. So I'll be starting from counterfeit. So counterfeit basically what it is, that see, I'm just telling you in a very local language that you have got one Aadhaar card. Okay, this is your Aadhaar card, and what happened that after this Aadhaar card is there with you, now I enter as B and I just copy your Aadhaar card and I make the same as it is, but it's not original. ये original नहीं है. This is a copy of this. This is one is original and this is a copy, right? But then I am making it and I'm using it somewhere. Then that is what counterfeit. So you will, आपने सुना होगा counterfeit of currency होता है, counterfeit of documents होता है, whatever. So that is what is counterfeit. Okay, now let's go to Bayer Act. What it says here: a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing. जो एक दूसरी चीज़ की तरह बनाता है. intending, उसका intent क्या होता है? by means of that resemblance to practice deception. वो क्या practice करना चाहता है? deception. और knowing it to be likely that deception will be there. अगर उसको या फिर वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बाद में उसको कहीं भी उसको पता है कि प्रैक्टिस होगा या कुछ भी ऐसा डिसेप्शन उसके माइंड में है, दैट इंटेंशन इज देयर, दैट इज़ व्हाट काउंटरफीट इज. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन 1. इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. हाँ, काउंटरफीट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कॉपी किया है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही हो. इट कुड बी लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा, बट सी देखिए क्या होता है ना कि आपने सुना होगा नोटों की काउंटरफीट हो रहा है, नोटों की सेम नोट बना के छापे करते हैं लोग. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं फॉर्ज, ये सब कुछ. तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है. ओनली द एक्सपर्ट वुड बी एबल टू फिगर इट आउट. सो इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है. तो दैट्स व्हाट. तो इसलिए काउंटरफीट का फर्स्ट क्या है? इट्स नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. जो इमिटेशन मीन्स तो सेम जो आपने बनाया है वो बिल्कुल वैसा होना ज़रूरी नहीं है. ओके, एक्सप्लेनेशन 2 इज़ व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग. जब वो व्हेन अ पर्सन कॉजेज, जब वो एक चीज़ दूसरी की तरह बनाता है, एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव देयर बाय, और मुझे लगे देख के कि हाँ ये तो सेम ही है भाई, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ऐसा माना जाएगा, अंटिल द कंट्रारी इज प्रूव्ड, जब तक कि दूसरा मतलब कि आपको ओरिजिनल ना दिखाया जाए अदर साइड से, डेट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट टू बी लाइक डिसेप्शन वुड देयर बी प्रैक्टिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक सपोज़ कीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट ले गई, मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट है, बट वो डॉक्यूमेंट है फॉर्ज.
अब मेरा मुझे पता ही नहीं था कि वो फॉर्ज है कि नहीं, या फिर मुझे पता था कि वो फॉर्ज है फिर भी मैं उनको लेके गई, जब तक कोई इंटेंट प्रूव नहीं हो जाता तब तक माना जाएगा कि मैं काउंटरफीट ही कर रही थी। तो आई हैव टू ऑलवेज अगर मैं काउंटरफीट करी तो मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता, वो रोल ऑन होकर हमारे पास आ जाती है एंड वी डोंट नो अबाउट इट. So that could also be the thing, but then it will be always our burden of proof to tell about that thing. Now the next come as your document. That the word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of. कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होगा जिसके अंदर लेटर होंगे, फिगर होंगे, मार्क होंगे, बाय मीन्स ऑफ वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज और एविडेंस एज अ मैटर. एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लेटर, फिगर्स, मार्क होंगे, वन ऑफ दोज मीन्स जो कि हमारा यूज़ होना है किसी भी एविडेंस के लिए, ठीक है, ऑफ दैट मैटर. एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं. It is immaterial by what means or upon what substance a letter, figure or marks or formed or evidence is intended for or may be used in a court of justice. ये हमें उससे मतलब नहीं, इमटेरियल है हमारे लिए कि जो आपका वो जो भी डॉक्यूमेंट पे लिखा है, ठीक है, जो भी उसने लिखा है, जो भी उसके ऊपर कोई मार्क है, जो भी उसके ऊपर कोई भी ऐसे फिगर है, तो वो किस लिए वो हमें मतलब नहीं है, वो है वही हमारे डॉक्यूमेंट है. दैट्स व्हाट इट इज़. ओके. नाउ अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट. इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि एक राइटिंग है जो कि दिखा रही है एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स दिखा रही है कि किस पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे, पर अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका वो कैसे कैसे बनता है. राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट. तो उसको भी हम डॉक्यूमेंट मानेंगे. दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. अ चेक भी एक डॉक्यूमेंट है आपका, पावर ऑफ अटर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है, मैप भी आपका एक डॉक्यूमेंट है, अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट. सो एनीथिंग जहाँ पे भी आपको कोई कुछ भी लिखा है, कोई ड्राइंग बनी है, कोई भी मार्क है पर्टिकुलर, सब आपका डॉक्यूमेंट में कंसिडर होगा एज पर बेयर एक्ट ऑफ IPC. एक्सप्लेनेशन 2 पे देख लेते हैं. वट एवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, figures or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed. जो भी हमारा फिगर्स, लेटर, मार्क्स से एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेन बाय मर्सेंटाइल और अदर यूसेज शैल बी डीम टू बी एक्सप्रेस बाय सच लेटर्स. उन्हीं लेटर्स के थ्रू. देखिए ना इसके अंदर क्या बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर हम देख लेते हैं कि मैथ्स के अंदर हमारा नंबर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब होता है, तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंट में ही कंसिडर होगा. हालांकि वो मैथ के कॉन्टेक्स्ट में है, बट वो आएगा डॉक्यूमेंट के अंदर या पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. ओके. नाउ इलस्ट्रेशन. ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर. अब ए ने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना एक नाम लिख दिया, ठीक है. एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ. यहाँ पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके ऊपर उसने अपना नाम लिख दिया. जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे पूजा, ठीक है, तो यहाँ पे पूजा लिख दिया. ए राइट्स इज नेम ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू हिज ऑर्डर. एक्चुअली ए लिख रहा है तो बेटर है मैं ए का एग्जांपल ले लूँ. इसको थोड़ा सा मैं कितने सेकेंड, हाँ जस्ट फिक्स. तो दिस आप, मैं चाहती नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो इन सबको लेके, सो आई विल जस्ट मेक इट क्लियर हियर, ठीक है. इसको मैं यहाँ से दोबारा ले लेती हूँ. हाँ, नाउ इट्स फाइन. So the thing is now it will be where it was. Yeah, A writes his name on the back of a bill of exchange. जो उसने किसी भी बिल है उसके पीछे अपना नाम लिखा है A, ठीक है. द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन बाय मर्सेंटाइल यूसेज दैट द बिल इज़ टू बी पेड टू द होल्डर. अब बिल किसको पे होना है? होल्डर को होना है, जैसे कि हमारा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है. द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर एज if the words pay to the holder or the words that effect has been over the signature. तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, जो ये लिखा गया है ना, इसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे. एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर, और इसको हम सेम मैनर में ही लेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के फ्लो में ही जा रहा है, ये ए को ही पे करना है, तो ये इसी का सपोर्टिव. इट्स फुल पर्टिकुलर थिंग इज अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड ए नेम. दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 29A ऑफ IPC. देखिए 29A का है ना, जिससे कि आप यहाँ पे देखेंगे 29 है और ये 29A बोल रहा है. तो जो A का मतलब ये ऐड हुआ है, ये अमेंडमेंट हुई थी और उसके अकॉर्डिंग ये ऐड हुआ है, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ABC कहीं भी दिखता है तो आपको दिख जाना चाहिए वो अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है. नाउ यहाँ पे लिखा भी है इंसर्टेड बाय एक्ट 21 ऑफ 2000 हियर्स सेक्शन 91 with and the first schedule with effect from 17/10/2000. Okay, that's what it's saying. Okay, let's come back here. Now the words electronic record
shall have the meaning assigned to them in clause T of subsection I of section 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखना होगा ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए हमें क्या रेफर करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्लॉज T ऑफ सेक्शन 2। ओके, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रेफर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, किसी भी एक्ट करना क्या होता है, वो हमेशा इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जैसे कि एविडेंस हो गया, तो एविडेंस किससे कनेक्टेड होगा, एविडेंस इज़ व्हाट काइंड ऑफ एक्ट, इट्स अ प्रोसीजरल एक्ट। ठीक है, तो प्रोसीजरल एक्ट होगा किससे कनेक्टेड होगा, सब्सटेंटिव एक्ट से कनेक्टेड होगा। ये 2 टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना, बेसिक लॉ टर्म्स, बट दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। सो यहाँ पे ऐसे होता है ये। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट वन। इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे गंदा कर दिया है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ आपके लिए, सो दैट विल बी मोर विजिबल टू यू। या इट इज़ क्लियर। सो या नाउ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। The words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended बनाया गया है, बढ़ाया गया है, ट्रांसफ़र हुआ है, रेस्ट्रिक्ट रोका गया है, एक्सटिंग्विश हुआ है, और go to the next way, रिलीज हुआ है, और वेर एवर एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, और कहीं पे भी वो बोल रहा है कि वो लीगल लाइबिलिटी के अंदर होता है, तो वो आपका कहाँ पे आएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर। और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, और किसी को वहाँ पे राइट नहीं है, राइट है, राइट नहीं है, राइट हटा दिया गया है, राइट को ऐड किया गया है, वट एवर इज़ देयर दैट वुड बी योर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इट विल बी कंसिडर्ड देयर। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपको। ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज as the effect of this endorsement is to be transferred the right to the bill to any person who may become the unlawful holder of it. The endorsement is valuable security. किसी भी ए ने किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना नाम लिखा है और उसको फिर हम आगे उसको endorsement में यूज़ करेंगे, that would be also considered as your valuable security. Okay, now let's come back to let's go to this section 31 of IPC. What it says, a will. The words of will denote any testamentary document. कोई भी अपना जो डॉक्यूमेंट को मेंशन करता है, कोई भी इंसान है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो बना के जा रहा है, तो वो आपको टेस्टामेंट्री, वो उसको लिख रहा है, टेस्टामेंट्री इसको टेस्टिफाई कर रहा है, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, सिग्नेचरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट्स व्हाट इज योर विल। तो विल का एक प्रॉपर कंसेप्ट दैट विल एक्सप्लेन, बट दैट्स हियर इट, वी हैव ओनली टू सी द डेफिनेशन पार्ट। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 32। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। ओके, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन क्या है, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। ओके, जब तक हम कोई भी हम इस एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जब तक कि हमें कोई कंट्रेरी इंटेंशन नहीं बता रहा है, वो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स विच रेफर टू द एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो इलीगल ओमिशन, जब तक जो इसने बताया गया इस एक्ट के अंदर वही हमारे लिए सही है। अगर उसने वहाँ पे कोई चीज़ एक्सेप्शन है, ओमिशन है, तो बता देगा कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। नाउ 33 एक्ट ओमिशन। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट। तो जो एक्ट है वो सीरीज ऑफ एक्ट को भी डिनोट करता है एज अ सिंगल एक्ट। ओके, द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। यहाँ पे आपको पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर हम बोल रहे हैं एक्ट तो उसका मतलब एक्ट्स भी है, अगर हम बोल रहे हैं ओमिशन तो उसका मतलब ओमिशंस भी है विद प्लूरल। तो हमने ये पहले ही पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मतलब वो पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, बट आई जस्ट मेक यू कनेक्ट दैट ऑल्सो कि वो कहाँ पे है। पब्लिक सर्वेंट है यहाँ पे, डेफिनेशन ये रहा 9, ठीक है ना, 9 के अंदर ये रहा, इसने बोला है ना, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट सिंगुलर नंबर, तो दिस इज व्हाट यहाँ पे मेंशन, इसको हमें उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, सेक्शन 31 इससे कनेक्ट हो रहा है 9 से, तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टेक केयर। नाउ I'm just going back to our same definition where it is 31, right? Where here it was 33, so it was 33, we just make a little connection, so 9 is connected to 33, that's what। अब हमें 9 का जो फर्स्ट जो उसका mentioned definition है वो कहाँ देखने को मिल गया, 33 के अंदर। ठीक है, now let's go to 34। एक्ट्स डन बाय अ सर्वल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। हाँ जी, अब क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे बंदे, सर्वल पर्सन किसी भी कॉमन इंटेंशन को कर रहे हैं, तो उसका क्या है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ सर्वल पर्सन, बहुत सारे बंदे मिलके एक ही काम को कर रहे हैं, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, उनकी कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज
इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन। हाँ जी, अब आप समझिए इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है इसने। क्या बोला है कि देखिए जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि सो अगर हमारे पास भाई ये 3-4 लोग हैं, ठीक है। अब ये 3-4 लोग क्या कर रहे हैं, ये 3-4 एक और बना देते हैं, ये आपके सारे मिलके एक ही काम को कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक ही बंदे को पीट रहे हैं, या जो भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, कोई भी कॉमन इंटेंशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि जो ये, क्योंकि सारे मिलके एक ही काम को कर रहे हैं, तो जब इनके अगेंस्ट चार्ज होगा, अगर वो इलीगल एक्टिविटी है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि सब इनके अकेले ने ही ये किया है। इस तरह से इन पे चार्ज फ्रेम होंगे। दैट्स हाउ इट इज़। ओके, नाउ व्हेन 35 क्या बोल रहा है, व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इसको आगे को देखते हैं। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग अलोन, कोई भी एक्ट है अगर वो क्रिमिनल है, विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय, वो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, और मुझे पता भी है कि वो क्रिमिनल है, इज़ डन बाय सर्वल पर्सन, और उसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट, जो भी बंदा उसको ज्वाइन करेगा, जो भी इंसान उसको ज्वाइन करेगा, विद सच नॉलेज और इंटेंशन, उसको चाहे पता है कि उसको ये जो हम काम करने आ रहे हैं गलत है, इज़ लाइबल फॉर दी एक्ट, वो उसके लिए लाइबल हो गए इन द सेम मैनर एज द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद द नॉलेज और इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट की बात की है, कॉमन इंटेंशन की बात की है, और यहाँ पे इसने क्या बात की है, क्रिमिनल नॉलेज की बात की है इसने, ठीक है ना। वहाँ पे तो इंटेंशन हो गई कि हमें ये चीज़ करना है और हमें पता भी है, दैट्स अ डिफरेंस। ओके, तो इस वाले में डिफरेंस नॉलेज की बात कर रही है। ओके, नाउ अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास 4 लोग हैं, 4 लोग, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे ले जाती हूँ। हाँ, तो अभी सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो सेक्शन 34 क्या बोल रहा है कि ये सब अगर एक काम को कर रहे हैं, ठीक है, उनका इंटेंशन, अब यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, उनका जो इंटेंशन है, अगर उनका इंटेंशन सेम है तो ये आपका सेक्शन 34 है, ठीक है। और ये सारे इस एक्ट के लिए लाइबल होंगे एज, जैसे कि इन्होंने खुद ने एक ने, मतलब इन सब पे अलग अलग चार्ज फ्रेम होगा और सबका इंटेंशन सेम माना जाएगा, सबको अलग अलग फ्रेम करेंगे, और ऐसा भी माना जाएगा कि इन्होंने अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट्स हाउ इट विल बी कंसिडर्ड। देन सेक्शन 35 क्या बोल रहा है आपको कि जब ऐसा कोई एक्ट होता है तो इसके अंदर ऐसा भी माना जाएगा कि इन चारों को इस एक्ट की नॉलेज भी थी, ठीक है ना। तो नॉलेज के चार्ज भी फ्रेम होंगे, इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है। ये भी इस तरह से फ्रेम होगा कि इनको पता भी था कि ये कर क्या रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन ऑल्सो। सो ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ। अब क्या किया जी, ए ने इंटेंशन के साथ जेड को मार दिया, पार्शली बाय इलीगल ओमिटिंग, और उसने फिर पार्शली इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ, partially by illegally omitting to give Z food and parting by Z. A has committed murder. तो अभी क्या किया ए ने, देखिए ए ने क्या किया है, सबसे पहले तो उसको उसने खाना दे दिया है, ठीक है, फूड, तो उसमें भी पॉइजन वगैरह जो भी उसने किया होगा, और उसके बाद उसने उसको मारा भी है, पीट के उसको मार दिया है, ठीक है ना, तो बीटिंग कर दिया है, तो यहाँ पे भी उसका मर्डर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। तो उसने पार्शली किया है ना, उसको पता भी था, वो ये चीज़ कर भी रहा था, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको इंटेंशन भी था, तो इसलिए यहाँ पे उसने मार दिया उसको, तो यहाँ पे फ्रेम होगा। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 37, कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सर्वल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सर्वल acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, जब एक कोई ऑफेंस होता है जो बहुत सारे काम को मिला के किया जाता है, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense, जो भी उस इंटेंशन में, जो भी उसके अंदर आ रहा है उस काम को करने के लिए, by doing any of those acts, उन एक्ट्स को करने के लिए, either legally, either singly और jointly with any other person commits that offense. Okay, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हम अपना एक बार नोटबुक खोल लेते हैं, सो इट विल बी लिटिल हेल्पफुल। या सो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि बेसिकली कि कॉपरेशन बाय, सो सपोज़ कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। तो ए ने बोला भाई तुम ले आओ, गन्स ले आओ, ठीक है। बी ने बोला भाई तुम सी और डी को बुला लो, तो गन्स आ गई, सी और डी आ गए यहाँ पे। सी ने बोला भाई तुम जगह डिसाइड कर लो, प्लेस, ठीक है।
डी ने बोला भाई तुम गन चला लो, ठीक है, ऑर्डर। तो ये चारों ने अलग अलग चीज़ें डिसाइड की, अलग अलग एक्ट किए, ठीक है। अब ये सारे एक्ट्स को मिला के इन्होंने जो भी ऑफेंस किया है ये सारे भी इनके एक्ट्स काउंट होंगे, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। ओके, नाउ या सो ए एंड बी टू मर्डर। अब क्या यहाँ पे इसका देखते हैं, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली। ए एंड बी एग्री करते हैं जेड का मर्डर करने के लिए, टू मर्डर जेड बाय सेवरली एंड एट अ डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या कर रहे हैं कि उसको छोटी छोटी मतलब कि छोटी छोटी डोजेज देके पॉइजन की मार रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या आ रहा है, उसके अंदर दिखा रहे हैं कि भाई उसको ऐसा एक्यूज़ है उसके ऊपर, रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उसकी उसने स्मोक ड्रग्स दे के मारा है या जो भी है वो एक्यूज़ है अभी, ठीक है, इस तरह से। तो जो भी वो बातें सामने आ रही है इस तरह से बोला जा रहा है कि उसको भाई उसने स्मॉल डोजेज दे के उसको ड्रग्स की उसको मारा है, अब जो भी उसको मतलब कंट्रोल किया है वटेवर। तो दैट्स वन ऑफ द रीसेंट एग्जाम्पल वी हैव। सो ए एंड बी एग्री करते हैं कि जेड को मारेंगे छोटी छोटी जहर की डोजेज दे के। ए एंड बी एडमिनिस्टर दी पॉइजन अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट, ठीक है। उस ए एंड बी जो एग पॉइजन है उसको लाते हैं, एग्रीमेंट जो उन्होंने आपस में किया है, विद इंटेंट टू मर्डर जेड। और किसको मारने के लिए, जेड। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सर्वल डोजेज ऑफ द पॉइजन सो एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम। अब क्या हुआ कि जेड है जो मर गया है, ठीक है, उसको जैसे पॉइजन उन्होंने प्लान किया था उस हिसाब से वो अब मर चुका है। हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कॉपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर। अब ए और बी ने इंटेंशनली कॉपरेट किया है इन द कमीशन ऑफ मर्डर, एंड ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विद द डेथ इस कॉज। और जिससे उसकी डेथ हो गई है, इन दोनों ने अलग अलग मतलब इंडिविजुअली ये चीज़ किया है। दे बोथ आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो दो देयर एक्ट्स आर डिफरेंट। उन दोनों के एक्ट्स अलग अलग हैं बट उन्होंने ऑफेंस एक ही किया है मर्डर का, ठीक है। उसको धीरे धीरे करके मारा है स्लो पॉइजन देके। नाउ लेट्स कम टू बी। ए एंड बी जॉइंट्स जेलर, ठीक है, ए एंड बी है वो जेलर है, एंड एज सच है द चार्ज ऑफ जेड। और उनके पास ए और बी के पास चार्ज किसका है, जेड का है। अब प्रिजनर अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर एट अ टाइम, ठीक है। तो एक प्रिजनर है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे आपको वेल एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब ये जो आपका है एग्जाम्पल, ये बोल रहा है कि देखिए ए है और बी है, ये दोनों जेलर हैं, ठीक है, और जेड की इनको कस्टडी मतलब ध्यान दिया गया है, उसको रखने के लिए चार्ज दिया गया है। तो ए उसको 6 घंटे कर रहा है, बी उसको 6 घंटे कर रहा है, इस तरह से पार्शली किया गया है, ठीक है ना। नाउ फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ। अब वो जेड की डेथ करने के लिए क्या करते हैं, knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied for that purpose। Z हाँ वो क्या सोचते हैं कि वो भी उसको खाना नहीं देगा, वो भी उसको खाना नहीं देगा, या उसको कभी खाना दे रहे हैं या जो भी है। तो उन्होंने ने आपस में अपना एक कॉन्स्पिरेसी कर लिया है कि भाई ऐसे ऐसे करके इसको ख़त्म करना है अपने बंदे को, लाइक बाय हंगर, ठीक है। तो उन्होंने कभी ये नहीं खाना देगा, ये नहीं देगा, तो इवेंचुअली जेड मर गया। तो अब क्या हुआ, जेड डाइज ऑफ हंगर, बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डर। अब ए और बी जो किसके होंगे, मर्डर के गिल्टी होंगे। हालांकि वो प्रिजन जेलर्स हैं बट स्टिल उनका प्रिजनर की कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो उन्होंने वॉयलेट किए हैं, कॉन्स्पिरेट किया करके उसको मार डाला है। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर हियर, ओके, इन सेक्शन 37 ऑफ IPC। नाउ इट्स डन, सो लेट्स कम टू सेक्शन 38। ओके, सेक्शन 38 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 38 पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंस ऑफेंसेस। कोई भी पर्सन है वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट के अंदर में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंस ऑफेंसेस। इसको आगे देखते हैं, वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं किसी भी कमीशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट के अंदर, ठीक है, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ डैट। अब देखिए ना क्या हुआ, जैसे ए है, बी है, सी है, उन तीनों ने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो अब क्या बोल रहा है कि दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए भी गिल्टी हो सकते हैं उस एक्ट को करने में, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ए अटैक जेड, ए ने जेड के ऊपर अटैक किया, ठीक है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, तो उन्होंने सोचा कि सपोज इन्होंने इसको हथौड़े से मारा, ठीक है, तो ये हमारा IPC का आगे सेक्शन पढ़ेंगे हम, कल्पेबल होमिसाइड होता है, मर्डर होता है, तो कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। पर आप सपोज समझिए कि मैं किसी को एक तो डंडी से मारती हूँ, पतली सी डंडी से, तो मुझे पता है इसको चोट लगेगी पर ये मरेगा नहीं। बट अगर मैं किसी को हथौड़े से मार देती हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं किसी को हथौड़े से मार देती हूँ तो उससे क्या होगा कि मुझे पता है अगर इसको हथौड़ा लग गया तो ये मर जाएगा।
सो बी हैविंग इल टूवर्ड्स जेड, अब जो बी है ना, जो बी यहाँ पे हैविंग, अब बी को भी प्रॉब्लम है किससे, जेड से, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, वो भी जेड को मारना चाहता है, यहाँ पे बी है उसको भी जेड को मारने का बड़ा मन हो रहा है, ठीक है, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड, पर उसको पता चलता है भाई जी ए इसको मारना चाहता है, तो वो ए को ना हेल्प कर देता है, यहाँ पे क्या कर देता है, ए को हेल्प कर देता है जेड को मारने के लिए, ठीक है, पता नहीं सब जेड के पीछे क्यों पड़े हैं, बट ठीक है। सो हेयर दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज इन कॉजिंग जेड, यहाँ पे ए और बी दोनों किस में है, इंगेज हैं जेड को मारने के लिए। बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, बी भी गिल्टी है किसके लिए, मर्डर के लिए, ओके, एंड ए इज़ ओनली गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो ए किसके लिए हो जाएगा, ए हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, देखिए जैसे ये पूरा एक मान लीजिए एक पूरा घर है, तो ये जो घर है ना ये तो है आपका कल्पेबल होमिसाइड, और उसके अंदर छोटा सा कमरा है आपका मर्डर। तो यानी कि हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं किसी को मारने जा रही हूँ हथौड़े से, तो मुझे पता है भाई जब मैं किसी को हथौड़े से मारूंगी तो बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि इस बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे ही कल्पेबल होमिसाइड आ जाता है, अगर वो बच गया तो ठीक है, बट अगर मुझे पता है 99% ना कि डेथ तो हो ही जाएगी, तो ये वाली चीज़ है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं किसी को सीधा जा रही हूँ गन लेके मारने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो गन से मैं किसी को शूट करने जा रही हूँ, तो गन से तो सीधा लगते ही बंदा गया। तो यहाँ पे यही चीज़ आ रहा है, बोल रहा है कि आपको मतलब मर्डर में सीधा आप मारने जाते हो, आपको मारना ही है बंदे को, यहाँ पे आपको सिर्फ हर्ट करना है, अमाउंट कितना हर्ट करना है डैट यू आर नॉट टेकिंग केयर, बट यहाँ पे आपको सीधा मारना है, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, ठीक है। तो ए जो बी है वो तो मर्डर के लिए, क्योंकि बी तो सीधा मारना ही चाह रहा था ना उसको, ए यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड, ए उसको सोच रहा था अंडर सर्कमस्टांसेस गिविंग कल्पेबल, हाँ, तो सोच रहा था कि मैं उसको ग्रेव प्रोवोकेशन करूँगा, ठीक है, उसको मैं डराऊंगा या जो भी चीज़ें करूँगा, तो उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, डराने का था, बहुत हर्ट करने का था, उसका जो भी हाथ पैर तोड़ने का था, पर उसको मारने का नहीं था, बट इसका क्लियर इंटेंशन उसको मारने का था, ये वो यहाँ पे बोल रहा है वो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, या सो यहाँ पे ये इसको हम दोबारा देख लेते हैं। अब बोल रहा है सेक्शन 39 वॉलंटरीली। सो वॉलंटरीली हमें पता ही है कि अपनी इच्छा से, जनरल वे में इसका मतलब होता है, बट आईपीसी में क्या इसका मतलब है देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली, कोई भी क्या होगा, कोई भी इंसान बोला जाएगा कि हाँ उसने कोई चीज़ अपनी इच्छा से की है, व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स, जब उसको कर रहा है, व्हेन ही इंटेंडेड टू कॉज इट, जब उसको इसकी इंटेंशन भी है, ठीक है, और बाय मीन्स, और एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज, उसको पता है कि ये चीज़ यहाँ से हो जाएगी। मतलब कि सपोज़ जैसे कि मैं किसी को सोच रही, मैं किसी को हर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसको एक थप्पड़ मार देती जाती हूँ, ठीक है, मैंने उसको एक थप्पड़ कस के मारा, तो मुझे पता है थप्पड़ मारने से वो हर्ट होगा, ठीक है ना। तो उस टाइप से ऐसा कुछ ये वॉलंटरीली बोल रहा है कि मैं ऐसे कोई हरकत कर दूँ जिससे कि वो मेरा वो चीज़ पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इलस्ट्रेशन में, ये क्या बोल रहा है, हाँ, ए सेट्स फायर बाय नाइट, ए फायर लगाता है बाय नाइट टू एन इनहैबिटेटेड हाउस इन लार्ज टाउन, किसी इनहैबिटेटेड हाउस के अंदर, लार्ज टाउन के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी, अब उसको रॉबरी करनी है तो वो आग लगा रहा है, एंड थस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, वहाँ पे आग लगने से कोई इंसान मर जाता है। हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज दैट, यहाँ पे ए की इच्छा उसको मारने की नहीं थी, ए मे इवन बी सॉरी दैट हैज़ बिन कॉज बाय दैट इज़ दैट, उसको सॉरी भी होगा कि भाई मेरी वजह से मैंने रॉबरी करने गया और वहाँ पे मैंने आग लगाई पहले और उसकी वजह से कोई मर गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ओहो। सो इफ़ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता है कि वो आग लगने से डेथ हो सकती है, तो ही हैज़ कॉज डेथ वॉलंटरीली, माना जाएगा कि उसका इंटेंशन था यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वो रॉबरी करने गया था, तो सोचा कि रॉबरी इजी कैसे हो जाएगी, मैं इस घर में पहले मैं आग लगा देता हूँ, तो जब उसने आग लगाई तो यहाँ पे वो रॉबरी करने लग गया और उसने यहाँ पे किसी हिस्से में आग लगा दी, उसके किसी घर के हिस्से में, तो यहाँ पे लोग बिजी हो गए, यहाँ से वो रॉबरी करके अपना निकल गया, बट यहाँ पे जहाँ आग लगी वहाँ पे किसी ए पर्सन की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो एक आर को पता चला जो रॉबरी करने गया, तो उसको लगा यार ये डेथ कैसे हो गई, मैं तो बड़ा सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है, बट सॉरी होने से मतलब नहीं होता, माना जाएगा कि यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी।